Hey everyone, in this video we're gonna solve this internal tools paper which was given to us by our respected and very beautiful teacher Mr. Prajapat sir, and it's very great. And since I am naive in this subject, we will gonna verify it, the answers which I am gonna say with the cheat sheet which was provided by our sir. I'm telling you, he's a very great sir. So, okay, let us start. Recording is on. Let's go. So section A, in this section, the questions will be from the data cleaning section. So question number one is, when merging data sets with different measurement systems, ensuring dash between units is crucial, imperative. The question is saying कि हम अलग-अलग डेटा सेट्स को मर्ज करेंगे. हो सकता है फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का एग्जांपल दे. सो एक डेटा सेट में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में मेजर हुई है, दूसरे डेटा सेट में माइल्स में मेजर हुई है. सो जब हम उन्हें मर्ज करेंगे सो देयर विल बी डिस्क्रिपेंसी. सो हमें क्या इंश्योर करना है कि सिमिलैरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो. सो इन दिस ब्लैंक विल सिमिलैरिटी या फिर कंसिस्टेंसी या फिर accordance or tense. Let's go. So this was our question number one. Second, okay, yeah. Second, in data cleaning, dash in, dash out stresses that analysis quality depends on input data. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने फॉल्ट डेटा या गलत डेटा ही या फिर बायस्ड डेटा ही अच्छे से अच्छे मॉडल, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा क्विंसेंशियल मॉडल है, उसे ही मैंने अगर गलत डेटा दे दिया, इनपुट दे दिया, गार्बेज दे दिया, तो मुझे आउटपुट में भी गलत ही मिलेगा, गलत डेटा ही मिलेगा. अगर मैंने गार्बेज दिया है तो मुझे गार्बेज ही मिलेगा. सो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा इन डेटा क्लीनिंग गार्बेज इन गार्बेज आउट स्ट्रेसेस. ये किस पे एम्फसाइज करता है कि जो एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनपुट डेटा के ऊपर. अगर इनपुट का डेटा प्रिसाइज है, करेक्ट है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी करेक्ट होगा. सो गार्बेज इन, गार्बेज आउट. And I think this thing applies to our lives too. Whatever we will feed to our brain, the outcomes will be contingent on that. Simple. Okay, so as I said that we'll verify this. First, let me correct this. Just a second. PHP. Okay, so it is written here. Mm, just wait a second. See, data cleaning. Data cleaning is the process of turning raw data into a clean and analyzable dataset. Garbage in, garbage out. Make sure कि जो garbage है वो doesn't put in. हम garbage ना दे, इस बात का हमें ensure करना है. So this was the answer of our second question. Third, the question says, fill in the blank are systematic problems introduced during the data cleaning process that can be corrected. That's the main thing. एंड सो दो टाइप्स की एरर होती हैं. एक होती है एरर जो जिसमें हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है. सेकंड वो एरर आती है जो कि इनकंसिस्टेंसी के कारण आती है, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के कारण आती है. बट द गुड थिंग इज दैट उसे हम करेक्ट कर सकते हैं. एंड इंग्लिश का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, आर टी फैक्ट्स. एंड द थिंग इज, अ ब्यूटीफुल थिंग इज, जो वर्ड आर्टिफिशियल है वो भी इसी वर्ड से बना है, आर्टिफैक्ट्स. सो ओके, so we can check it here too, that artifacts, systematic problems that arise from the data cleaning process. These problems can be corrected, but we must first discover them. And that's very logical and rational thing कि जब तक हम उसे discover नहीं करेंगे हम उसका solve कैसे करेंगे, हम उसको answer कैसे देंगे.
So, third question is done. Four, irrecoverable information loss during acquisition is an example of it is an example of data loss. Okay, sorry, या फिर error. We can see here errors. First, just a second, let me clean it. Information that is lost during acquisition and can never be recovered. ये एक immutable, irrevocable प्रोसेस हो चुकी है जो कि किसके कारण अराइज होती है? पावर आउटेज के कारण, क्रैश्ड सर्वर्स के कारण. So the answer of fourth one is data loss या फिर error. Replacing missing data with the mean of existing values is called dash imputation. Answer is simple. Mean imputation. ग्रुप ऑफ डेटा सेट्स है, एक डेटा मिसिंग है, हम क्या करेंगे? जितने भी अवेलेबल है उसका मीन ले लेंगे एंड जो मिसिंग डेटा है, जो मिसिंग वैल्यू है उसको उस उसकी जगह हम मीन को असाइन कर देंगे. बट द थिंग इज दैट ना, इससे जो हमारे डेटा की जो वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी. नॉर्मलाइज डेटा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. फिलिंग मिसिंग वैल्यूज वाया लीनियर रिग्रेशन या फिर कर्व फिटिंग इज नोन एज रिग्रेशन. In fact, na, the two main things are regression and classification. Regression is used for predicting a particular value, and classification is used to classify that this thing belongs to this group, this thing belongs to this group. This is a very beautiful question. Always preserve both dash data and the cleaned data set. So first, let me give you the answer raw. I don't know I am writing it correctly. Always preserve both raw या फिर rudimentary data या फिर cleaned data set. So we can find it here. When cleaning data, always maintain both the raw data and the cleaned versions. The raw data should be kept intact. मतलब उसे वो मतलब अनटेंटेड रहना चाहिए, उस वो मार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज. Any type of data cleaning analysis should be done on a copy of raw data. जितना भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो भी एनालाइज क्लीन कर रहे हैं, वो हमें किसके ऊपर करनी है? जो रॉ डेटा है उसकी कॉपी के ऊपर करनी है. ओके, सो yeah, question number seven's answer is raw या फिर rudimentary. Now, converting John Smith to Smith John is an example of name standardization. हम standardize कर रहे हैं, normalize कर रहे हैं. Normalize, because ultimately both the things are same. बस वो अलग अलग लिखी गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दो अलग अलग एंटिटी हो गई. किसी ने जॉन स्मिथ लिख दिया, किसी ने स्मिथ जॉन लिख दिया, किसी ने कैपिटल एस स्मिथ लिख दिया, स्मॉल जॉन लिख दिया. इट डजेंट मैटर. वही कि अलग अलग डेटा सेट में एक ही चीज, एक ही एंटिटी अलग अलग तरीके से रजिस्टर हो सकती है, एंट्री कर सकती है. बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो दोनों अलग अलग ही एंटिटी है. Okay, so outlier detection is often used as a sanity check. By the way, guys, you know what is sanity means? Sanity is the normal level of our brain. You have heard the word insane. In is the negative prefix. So when someone loses one's sane, we say that the person has gone insane. सो जो आउटलायर डिटेक्शन है, हम कितना अच्छे से आउटलायर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो किस तरीके की वो किस चीज की तरह एक्ट करता है, वो एक सैनिटी चेक होता है. And we can verify this too, that outliers can interfere with analysis and often arise from mistakes during data collection. Outliers जो हैं वो interfere कर सकते हैं, interrupt कर सकते हैं, stimmy कर सकते हैं हमारी analysis को. और किससे अराइज होते हैं? मिस्टेक्स. कौन सी मिस्टेक्स? कब आती है वो मिस्टेक्स? डेटा कलेक्शन की ड्यूरिंग जो भी मिस्टेक्स आती है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? इट मेक्स सेंस टू रन अ सैनिटी चेक कि हमारा डेटा कितना सेन है. पता चला कि नंबर्स में नेम आ रहे हैं,
क्रिकेट के स्कोर के डेटा में बैडमिंटन का स्कोर लॉ लॉ आ रहा है. So yeah, that can be an outlier. Oh my God, what a great example. So the 10th one is functions like Unicode help remove inconsistent characters during dash repair. Which kind of repair? हम encode कर रहे हैं. So encoding रिपेयर में फंक्शंस जैसे कि यूनिडिकोड जो है वो इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है. So these first 10 questions were from section A, data cleaning. Now I think I should change the color. Perfectos. Yeah. Next question is transforming raw variables into more informative ones is called feature. In fact, feature engineering. जब हम रॉ वेरिएबल्स को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वंस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल्स जो कि ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को उनको हटाना दैट ऑल कम्स अंडर द टॉपिक फीचर इंजीनियरिंग. वी कैन हैव अ रीड टू. Here is the feature engineering. That feature engineering is the process of using domain knowledge to create features या फिर input variables that help machine learning algorithms perform better. If done correctly, it can help increase the predict power of our model. Feature engineering is more of an art than science, and that's very true. FE is one of the most feature engineering is one of the most imperative steps in creating a good model. As Mr. NG says that coming up with features is difficult, टाइम कंज्यूमिंग रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज. जो अप्लाइड मशीन लर्निंग है वो बेसिकली क्या है फीचर इंजीनियरिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं जो हमारा डोमेन का नॉलेज है. अगर मुझे साइंस का नॉलेज है आर्ट का नॉलेज है म्यूजिक का नॉलेज है कोई भी पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है उसकी मदद से मैं ऐसे फीचर्स ऐसे इनपुट वेरिएशंस डालूंगा जिससे मेरी जो लर्निंग है वो और बेटर हो सके. And that was the question which was asked. That transforming raw variables into more informative ones is called feature engineering. किसके थ्रू हम करेंगे जो हमें डोमेन का नॉलेज है उसके थ्रू हम करेंगे. Predicting a numeric value such as salary is an example of, as I have said earlier, कि दो टाइप की प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आती है regression and classification. हम सिंस यहाँ पे predict कर रहे हैं regression कर रहे हैं. Okay, so a model that fits training data perfectly but fails on new data suffers from. सो दो टाइप्स की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग में तो अच्छे से ट्रेन तो उसने बहुत अच्छे से कर लिया बट जब उसे टेस्ट करने की बारी आए सो इट इज फेलिंग इट डाइज इट पुश अप डिजीज. सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज ओवरफिटिंग. एंड इसी का जो साथ में इसी का जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है अंडर फिटिंग जहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन भी अच्छे से नहीं कर पाता एंड सिंस ट्रेन ही अच्छे से नहीं कर पाया सो टेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएगा. ओके. ट्रेनिंग मल्टीपल. ओके. आई थिंक आई लेफ्ट द क्वेश्चन. ड्रॉप आउट एंड वेट पेनल्टीज आर एग्जांपल ऑफ डैश मेथड्स. जब हम किसी चीज को ड्रॉप आउट कर रहे हैं वेट पेनल्टीज कर रहे हैं सो हम यही ओवर फिटिंग से बचाने के लिए हम वेट पेनल्टीज लगा रहे हैं ड्रॉप आउट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं हम रेगुलराइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलराइजेशन. ओके. ट्रेनिंग मल्टीपल डाइवर्स मॉडल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इज नोन एज हम अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट आ सके. सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एनसेम्बल लर्निंग कहते हैं. एनसेम्बल. ओके लेट अस डू वन थिंग. हम एटिमोलॉजिकली भी चेक कर लेते हैं कि एनसेम्बल का मतलब क्या होता है. ओके. ओ माय गॉड. ओके. सम फन टाइम एनसेम्बल का मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है.
सो ensemble का मतलब क्या होता है? A group of musicians who play regularly together. A group of actors who act together in a film, play या फिर television series, more like a repository, and have approximately the same importance in the story या फिर appear for about the same amount of time on the stage या फिर screen. So ensemble का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि it's basically a group of people या things that form something. Okay, so let me close this. सो ट्रेनिंग मल्टीपल मॉडल्स एंड जैसे कि अभी हमने देखा कि ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे भी हम डाइवर्स मॉडल्स मतलब एक मॉडल्स के ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम प्रिसाइज रिजल्ट तक पहुंच सके एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज कॉल्ड ensemble learning. Fifth, sorry, 15th, a simple reference model for comparison is called. So the answer is baseline model. व्हाट इज बेसलाइन मॉडल? बेसलाइन मॉडल जो है वो रेफरेंस की तरह यूज होता है, एक बेसलाइन की तरह यूज होता है कि जो भी हम हमारे मॉडल को बना रहे हैं हम उससे किससे कंपेयर करेंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इट्स बेसिकली और रिलेटिविटी किसके कंपैरिजन में हम बोलेंगे कि हमारा मॉडल ज्यादा अच्छा है? सो बेसलाइन मॉडल के कंपैरिजन में हम बोलेंगे कि द करंट मॉडल इज गुड, बैड और परफेक्ट. 16 पे अब जाए तो इंडिपेंडेंट अनचेंजिंग डेटा सैंपल्स आर डिस्क्राइब्ड एज डैश डेटा. इसका आंसर लेट अस चेक. ओके आई थिंक कि आई फॉरगॉट, आई एम सो ऑब्लीवियस. मैं शायद भूल गया कि इसका आंसर कहाँ लिखा था. सो ओके बट आई रिमेम्बर द आंसर, मैं बस वो लोकेशन भूल गया. सो independent unchanging data samples are described as static. स्टैटिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वो चीज जो डायनामिक नहीं है, जो चेंज नहीं होती है. सो स्टैटिक डेटा क्या होता है? इंडिपेंडेंट चेंजिंग डेटा सैंपल्स. वो डेटा सैंपल्स जो कि चेंज नहीं होते, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ये चेंज होगा, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स अगर चेंज होते जाएगा सो ए की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी. बट सिक्स, ए इज इक्वल्स टू सिक्स, तो यहाँ पे ए जो है ये स्टैटिक डेटा है. पैरामीटर्स ट्यून बिफोर ट्रेनिंग जो कि कौन से फेज में होते हैं? दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. तीन फेजेस होते हैं: ट्रेनिंग फेज, वैलिडेशन फेज एंड टेस्टिंग फेज. सो वैलिडेशन फेज में हम पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं और उन पैरामीटर्स का नाम है हाइपर पैरामीटर्स. हाइपर पैरामीटर्स. 18th, comparing two versions statistically to see which performs better. हम दो वर्जन्स को ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा वर्जन जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं, जहाँ पे हम दो अलग अलग वर्जन्स को स्टैटिस्टिकली चेक कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. Normalizations typically rescales numeric features to the range. That's very important and it basically helps. जो normalization है, because for example एक हमारी क्लास ऐसी है या फिर फॉर एग्जांपल रेटिंग. अब रेटिंग जो है वो तो 0 से 10 में होगी. अब किसी ने सैलरी बना दी, सैलरी जो है वो तो फॉर एग्जांपल 1 लाख टू 10 लाख हो सकती है. एंड अगर हमने विदाउट नॉर्मलाइजिंग इट सीधा इसे अकाउंट में ले लिया गॉच करने के लिए, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड डिस्क्रिपेंसी, बायसनेस आएगी उससे. So it is very important to use normalized data. एंड उसका फॉर्मूला भी होता है वैसे तो x माइनस एक्स मैन अपॉन एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स मैन, ताकि हम उसे नॉर्मलाइज कर सकें एंड 0 से 1 के बीच में ला सकें. 20th, the difference between train and test performance measures मॉडल की डिस्क्रिपेंसी की वो कितना वेरी कर रहा है, एरर कितने का है, जनरलाइजेशन एरर कितना है. द करेक्ट टर्म इज दिस, या फिर हम इसे डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं कि कितना एरर आ रही है, डिस्क्रिपेंसी कितनी आ रही है. डिस्क्रिपेंसी.
And bias sampling in data collection can cause definitely what we can say sampling bias. And that's the example the question number two was asking about, that if you will put biased data in, the output will be biased too. If you will put garbage, you will get garbage. And perfecto. So 20th question, we are on 21, and this was our section B. Boom. Okay, so let me check first. Is it recording? Okay, so sorry for the commotion. So sorry for the impediment. Okay, so we have successfully answered our section A and section B. Section C is of deep learning. So yeah, we'll cover it in this video, but I think first we should cover this one, Python data structures, because I think it is comparatively easy to the great deep learning. Okay, so jokes apart, lists are ordered and dash meaning that can be changed. लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्डर्ड रहता है एंड म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल रिवोकेबल होता है। दैट मीन्स कि हमने अगर उसमें वैल्यू एंटर करी तो हम वैल्यू को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एंड दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, एंड दैट्स व्हाई लिस्ट के अंदर इतनी सारी मेथड्स होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर pertaining to changing the data. एंड 11 मेथड्स होती हैं मेनली, बहुत होती हैं बट या बहुत सारी होती हैं, बट टपल्स में तो सिर्फ दो ही मेथड्स होती हैं। सो टपल्स डिफर फ्रॉम लिस्ट बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। हमने अगर उसमें एक बार वैल्यू डाल दी तो अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स, इम्यूटेबल, इररिवोकेबल, वो केबल। Dictionary store data as key value pair. For example, A का one, name, DJ, Earth, universe, Earth, galaxy, Milky Way. Yeah, that's it. So 43. Sets contain only unique values. That's a very important thing. Tuples, tuples and lists में elements जो है वो repeat हो सकते हैं। तो पर जो सेट्स हैं उसमें यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं, एंड जो सेट्स है वो अनऑर्डर्ड रहता है, मतलब जब हम उसे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करेंगे तो जो ऑर्डर है वो डिफरेंट रहेगा। अ डी क्यू अलाउज फास्ट ऑपरेशंस एट बोथ एंड्स, हम दोनों तरफ से ऑपरेशंस को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। 45th इज काउंटर इज अ सब क्लास ऑफ डिक्ट, जो कि क्यों हेल्प होता है, ताकि हम टैली कर सकें कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितनी बार अकर हुआ है। That's why I chose this section first, because it is very easy and one word answer. That's why I chose this section first, albeit it's not the correct rationale, because ultimately we have to do this one too. Okay, so let's not dilly dally. A frozen set is a set that is immutable. Immutable. Frozen sets में हम कुछ operations perform कर सकते हैं, for example union, difference, intersection, symmetric difference, but हम frozen sets को change नहीं कर सकते. That's the very important thing. The heap queue model implements, heap queue model जो है वो क्या implement करता है, एक priority list को implement करता है, priority queue को implement करता है. In a max heap, each parent's node's value is dash than its child. So definitely greater, greater, what it's saying कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्पेस है, सो जो भी हमारी मैक्स हीप रहती है उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा पेरेंट नोड है, ये इसके दो चाइल्ड नोड है। सो अगर इसकी वैल्यू 10 है
सो डेफिनेटली इन दोनों की जो वैल्यू है वो 10 से कम होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी। ऐसा नहीं है कि ये 11 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल in case of max heap. And converting a list into heap order is called heapify. Simple. The process जहाँ पे हम एक list को I don't know why I'm saying least uh, okay but least again list को heap order में convert करने को heapify कहते हैं। heapify perfectos. So this section is completed. Now let us come to our last section, that is of deep learning.